Hello students, in this video we will read the second part of the chapter The Sound of Music. The name of this part is The Sehnai of Bismillah Khan. I think you already know who is Bismillah Khan. He was a renowned Sehnai player of India and who was a Bharat Ratna also. So let's read about his life journey. Directly come to the text. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Okay, during the time of Mughal reign, Emperor Aurangzeb had ban means mana kar dena, band kar dena. Okay, he had banned the playing of a musical instrument called pungi. पुंगी नाम के एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बैन कर दिया था. कहाँ? उनके रॉयल रेसिडेंस में. रेसिडेंस मीन्स a home. Royal residence means a home of a royalty or an emperor or a king. Okay. So in his residence he had banned the playing of pungi. मना कर दिया आज से कोई मेरे महल में pungi नहीं बजाएगा. Why? Because it had a shrill, unpleasant sound. He thought it has a very high pitched and very bad sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. Okay. So the word pungi became a typical name for those who used to make noise, for those instruments who used to make noise and for those people who used to make noise. तो जो भी noise create करते थे उनको in a negative way pungi बुलाया जाने लगा. Few had thought that it would one day be revived. So pungi had such a bad reputation at that point of time that very few people thought that it will revive again. Revive means come into existence, come into life again. बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन फिर से revive करेगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Okay, so there was a family of professional musicians and the barber of this family had access to the royal palace. Access means the means or opportunity to approach or to enter. Okay, enter कर पाना. Suppose आप एक website खोल सकते हो, then you say I have access to this website. नहीं खोल सकते, then we don't have access to this website, right? अगर आप किसी चीज़ के अंदर enter कर सकते हो, जा सकते हो, then we say we have access to that place. So the barber had access to the royal palace. He decided to improve the tonal quality of pungi के टोन को इम्प्रूव किया जाए. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तो उसने एक पाइप लिया जो कि नेचुरली अंदर से हॉलो था, खोखला था, एंड पुंगी से ये थोड़ा लंबा भी था और थोड़ा ब्रॉड भी, चौड़ा भी, एंड मेड 7 holes on the body of the pipe. उन्होंने पाइप के बॉडी पे 7 होल्स बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वो उस जैसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर था जो उसने बनाया था, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लगा. 7 होल्स उसने बनाए थे, एक होल को बंद करते हुए खोलते हुए. देन सॉफ्ट म्यूज़िक वॉज प्लेड, सॉफ्ट म्यूज़िक वॉज प्रोड्यूस्ड. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Okay, after he developed this instrument he went and played it before the royalty. Okay, it was many years after Aurangzeb had banned it. Okay, he went and played it in front of the king and everyone was just impressed. सबको पसंद आया. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. Okay, though the instrument had been built inspired by pungi, but it was very different from pungi. So the king thought that this instrument should be given some other name. As the story goes, since it was first played in the Sah's chamber and was played by a nai means barber, the instrument was named the Sehnai. Okay, क्योंकि ये पहली बार एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था. शाह was the king at that point of time, उनको शाह कहा जाता था, और एक नाई ने पहली बार बजाया था, बारबर ने, तो इसका नाम रख दिया गया सहनाई. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस इज हाउ सहनाई वॉज डेवलप्ड, सहनाई वॉज बिल्ट. The sound of the Sehnai
began to be considered auspicious. धीरे धीरे लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि शहनाई का जो साउंड है दैट इज़ ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स लकी, समथिंग दैट ब्रिंग्स गुड लक, समथिंग दैट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी. पता नहीं क्यों लेकिन लोगों के अंदर ये एक भावना क्रिएट हो गया. दे स्टार्टेड कंसीडरिंग मीन्स टेकिंग इट एज समथिंग वेरी ऑस्पिशियस. लोग उसको बड़े शुभ मानने लगे. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स and is an indispensable component of any North Indian wedding. Okay? इसी रीज़न की वजह से आज भी इसे टेम्पल्स में बजाया जाता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, लकी माना जाता है. और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में तो बिना शहनाई का कोई वेडिंग नहीं हो सकता. इट इज़ इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स वेरी वेरी नेसेसरी, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. ओके, सो शहनाई इज समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग बिकॉज वेडिंग को एक ऑस्पिशियस सेरेमनी माना जाता है और ऐसे मानते हैं कि शहनाई बजाओ तो वो और भी लकी हो जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. ओके, तो मुग़ल एम्परर्स के टाइम पे उनके कोर्ट में 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जगह दी गई थी जो बहुत ही सुनने में ब्यूटीफुल होते थे, मेलोडियस होते थे, तो उनको नौबत कहा जाता था. एंड शहनाई वॉज वन अमॉन्ग देम. द वर्ड एनसेम्बल मीन्स अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ डांसर्स हु परफॉर्म टुगेदर. ओके, सो till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो अब तक ये सिर्फ मंदिरों में बजाया जाता था, शादियों में बजाया जाता था, स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता था. तो इसको क्लासिकल म्यूज़िक में जगह देने का और स्टेज पे लाने का काम किसने किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने. सो लेट्स रीड अहेड about Ustad Bismillah Khan. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. Okay, बिहार में ही डुमराव एक प्लेस है, वहाँ बिस्मिल्लाह खान का बचपन बीता. वहाँ पे वो 5 साल की उम्र के थे तब से रह रहे थे, गिल्ली डंडा खेलते थे पॉन्ड के पास in the ancient state. Ancient means very very old. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो वो लोकल महाराजा के पास जाते थे और चैता इज़ अ काइंड ऑफ क्लासिकल, नॉट क्लासिकल बट इट्स अ फोक सॉन्ग ऑफ बिहार, मे बी यू नो. सो वो जाके महाराजा जी के पास वो गाते थे और फाइनली उनको एज अ प्राइज़ 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था. दिस हैपेंड 80 years ago when उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ चाइल्ड ऑफ 5 years of age. सो ये कुछ 80 साल पुरानी बात है. एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना. तो वो जो छोटा सा लड़का गाना गाता था लड्डू के लिए, नाउ ही हैज़ ट्रैवल्ड सो फार, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो भारत रत्ना, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीत चुका है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. So, this was Bismillah Khan's date of birth, 1916, 21st March, and he was born in a very well-known family of musicians in Bihar. His grandfather, Rasool Baks Khan, was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur king's court. Okay, भोजपुर के किंग की कोर्ट में सहनाई नवाज थे, मतलब सहनाई बजाते थे. कौन? बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर, हुज नेम वॉज रसूल बख्श खान. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर. तो उनके फैमिली में सब लोग सहनाई बहुत अच्छा बजाते थे. उनके पापा भी पैगंबर बख्श और उनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स. पैटर्नल मीन्स रिलेटेड टू फादर, पैटर्नल अंकल मीन्स आपके पापा के भाई, राइट. सो उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे मीन्स उनके पापा के भाई, पापा के पापा के अंकल्स, ये सब. ओके, वो भी सब ग्रेट सहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ.
ये बच्चा भी बहुत ही अर्ली एज पे म्यूज़िक के साथ रिलेशन रखना शुरू किया. ओके, he maybe he started learning, maybe he started watching his uncles playing music at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching uncles practice the Sehnai. जब वो 3 साल के थे अपने मम्मी के साथ अपने मैटरनल अंकल्स के घर जाते थे, अपने ननिहाल जाते थे. ठीक है, अपने मैटरनल अंकल्स को वो देखते थे म्यूज़िक बजाते हुए, बस सहनाई बजाते हुए. एंड ही यूज्ड टू बी फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस. ओके, जब उनके अंकल सहनाई बजाते थे वो उसको देख के बहुत ही फैसिनेटेड होते थे. फैसिनेटेड मीन्स हाईली इंटरेस्टेड, अट्रैक्टेड. ओके, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. ओके, उनके मामा का घर था बनारस में. वो जब वहाँ जाते थे अपने मामाओं को म्यूज़िक बजाते देखते और धीरे धीरे वो अपने अंकल अली बख्श के साथ बनारस के टेम्पल में जाने लगे, जहाँ पे जाके वो सहनाई बजाते थे. उनके अंकल सहनाई बजाते थे. अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. ओके, अली बख्श जो उनके मामा थे घंटों तक म्यूज़िक बजाते, सहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह उनको घंटों तक बैठ के सुनते रहते, एज इफ ही वॉज कैप्टिवेटेड. कैप्टिवेट मीन्स किसी को बांध देना, किसी को पकड़ लेना, राइट. वो इस तरह से बैठ के म्यूज़िक सुनते थे जैसे किसी ने उनको वहीं पे बांध दिया हो, जैसे म्यूज़िक ने ही उनको बांध दिया हो. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. तो 3 साल से 5 साल के बीच में बस उन्होंने सुना एंड इट यूज टू फैसिनेट हिम. आफ्टर दैट उनकी भी ट्रेनिंग शुरू हो गई. ऑफकोर्स दिस वॉज अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, सो the same tradition was to be followed. Bismillah also took to music. He started learning it and started practicing it throughout the day. क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी था तो पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे. For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Okay, तो धीरे धीरे वो सीखने लगे. उसके बाद बहुत साल बालाजी टेम्पल और मंगला मैया के टेम्पल और गंगा रिवर का किनारा, ये जगह बन गया इस यंग अप्रेंटिस का फेवरेट प्लेस. फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट वर्ड का मतलब होता है प्लेस वेर यू रेगुलरली विजिट. ओके, तो उनका ये सब फेवरेट हॉन्ट बन गया, फेवरेट प्लेस बन गया. एंड ही वॉज अ यंग अप्रेंटिस. यंग अप्रेंटिस उसे कहते हैं जो एक स्किल्ड पर्सन से कोई एक ट्रेड सीखता है और एट द सेम टाइम वो उसके पास काम करने के लिए, लो वेज में काम करने के लिए राज़ी भी हुआ होता है, उसको ही अप्रेंटिस कहा जाता है. अब देखे होंगे कोई छोटे यंग पर्सन आके गैराज में काम करना सीखते हैं, फिर वहीं पे काम करना शुरू भी करते हैं, जिससे सीखते हैं उसके पास काम करना शुरू भी करते हैं, उनको अप्रेंटिस कहा जाता है. ओके, जो किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर से कोई काम सीखे विथ द कंडीशन टू वर्क फॉर हिम इन अ लो वेज. ओके, तो इस यंग अप्रेंटिस का फेवरेट प्लेस बन गया गंगा का किनारा, मंगला मैया टेम्पल एंड बालाजी टेम्पल. So the flowing waters of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the ranges of the Sehnai. So he started practicing in solitude. Solitude means alone, अकेले उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया. और जब अकेले होते हैं हमारा दिमाग शांत होता है, then we can perform things better. And the flowing water of the flowing water of Ganga was inspiring him. Okay, गंगा रिवर से उनके मन को इतनी शांति मिलती थी कि वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे. इवन ऐसे ऐसे रागा उन्होंने इन्वेंट कर दिया जो कि पहले माना जाता था कि वो रागा सहनाई में नहीं बजाया जा सकता. सो he was developing as a musician. Then after that what happened? At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. के only 14 साल के थे जब अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाके पहुँचे. At the end of his recital, उस्ताद फैज खान patted the young boy's back and said, जब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, उस्ताद फैज खान, he was also a master of सहनाई,
उन्होंने उनके पीठ को थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. बिस्मिल्लाह को सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का सेंटर खुला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ओके, रेडियो पे जब जैसे ही रेडियो खोलता था पहले शहनाई बजती थी और लोग उसको सुनते थे। ओके, तो एवरी डे पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम ऑन रेडियो। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, कब? 15th अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने सहनाई बजा के पूरे नेशन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ग्रीट किया। सहनाई बजाना ऑस्पिशियस माना जाता है, किसी भी सेरेमनी में सहनाई बजाते हैं ताकि सब कुछ शुभ हो। तो ऑफकोर्स हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, दिस वाज द मोस्ट ऑस्पिशियस सेरेमनी फॉर ऑल इंडियंस, तो सहनाई तो बजना ही था। सो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सहनाई बजा के पूरे नेशन को ग्रीट किया था। कहाँ से? ऑफकोर्स किसी ऐसे जगह पे बजाए होंगे जहाँ से पूरा नेशन उनको सुन सके। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उन्होंने सबसे पहले सहनाई बजाया रेड फोर्ट पे, ओके, और रेड फोर्ट पे वो अपना पूरा हार्ट डाल के राग काफ़ी बजा रहे थे और एक ऑडियंस उनको सुन रहा था रेड फोर्ट पे, और पूरा ऑडियंस इंडिया के सारे लोग उनको रेडियो पे सुन रहे थे। और उस ऑडियंस में जो रेड फोर्ट पे मौजूद थे उनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बाद में सहनाई प्ले होने के बाद अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच दिया था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बहुत फेमस स्पीच है जो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड टिल हियर 3 times. Then we will go to the paragraph 8 and we will read ahead. If you have any doubt, contact me. Thank you.